अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, जिस पर सबसे ज्यादा एतबार किया जाता है बाज़ औक़ात वही शख्स इस हद तक चला जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा ही वाकया पेश आया ओकाड़ा के इलाके रनाला खुर्द में, जहां पर एक जिगरी दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। उसकी बॉडी पर इतने ज्यादा वार किए कि जब उस शख्स की लाश मिली तो पूरी तरह जलनी थी। वजह क्या थी कि दोस्त को यह शक था कि उसकी ही किसी दोस्त लड़की के साथ उसके दोस्त के कुछ ताल्लुकात हैं। इस बिना पर उस शख्स ने अपने ही दोस्त को जान से मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम दोस्त का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस नौजवान की वालदा जिसके दोस्त ने ही उसको कत्ल कर दिया बड़ी बेरहमी से। बात करते हैं इनसे। वो कहते हैं दोस्त जो होते हैं वो माओं के लिए वो भी अपने बेटों की तरह ही होते हैं, अपने बेटों के जो बच्चों के दोस्त होते हैं। लेकिन ये शख्स इतना जालिम निकला जिसने बड़ी बेरहमी से एक माँ के लखते जिगर को कत्ल कर दिया। माँ जी, सब तो पहला तो सानू बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे, अल्लाह ताला तुहानू हिम्मत देवे। एड्डा वड्डा तुहाडे नाल तुहाडे बच्चे नाल जुल्म हो गया ते एक किन्ने अरसे तो दोस्ती सी दोवां दी? जी हुण होई एक साल 2 साल हो गए। 2 साल हो गए ने? हाँ जी 2 साल हो गए। ਤੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੀ ਯੂਰੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਦਾਲ ਭਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲੈ। ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੰਮਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਬੇਬੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋੜ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ? 24 ਸਾਲ 24 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਪਲੰਬਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 12 ਚ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 14 ਚ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਹਾ ਵਜਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਬੂਹਾ ਵਜਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਕਾਰ ਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੀ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਵਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਕੂਟਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਕਾਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਰਾਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੜਨਾ, ਮਗਰ ਨਾ ਆਈ ਘਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਿਸਲੇ ਉਰਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੂ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਨਦੀਮ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਖਰੇ ਇਹਨੂੰ ਝਾਟ ਮਾਰ ਲਈ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਕੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੱਜੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर रनाला खुद रब नवाज साहब। उनसे हम बात करेंगे एक ऐसे केस के हवाले से जिसमें दोस्त ने ही दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था और बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था। लेकिन DPO ओकाड़ा के अहकामात पर SHO थाना सदर रनाला खुद रब नवाज साहब और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और अंधे कत्ल का सुराग लगा ली। बात करते हैं इनसे इस कत्ल के मामले के हवाले से, इस केस की मजीद जो डिटेल्स हैं इनसे जानते हैं। जी रब नवाज से बताइएगा मामला था क्या, कब इतला मिली आपको और किस तरीके से आप लोग असल कातिल तक पहुंचे? ये बात है 9 मई की, कोई सुबह 5-6 बजे हमें 15 पर इतला मिली
कि 13 माइल गांव के करीब मकई की फसल के अंदर एक नाममालूम नाश पड़ी है, जिसको सर के ऊपर कुछ ज़ख्म के निशानात हैं। हम फिलफौर 15 की कॉल पर हम मौके पे पहुंचे। हमें एक जो नाममालूम डेड बॉडी थी उसको चेक किया तो उसके पूरे जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ ज़ख्म के निशानात थे, सर के अंदर भी ज़ख्म के निशान थे। तो पता करने पर मालूम हुआ कि ये 13 माइल के ही गाँव के ही लड़के वकार की ये डेड बॉडी है। तो इसके ऊपर हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसके लिए जिसमें हमारे पास किसी किस्म का कोई क्लू नहीं था, कोई मौके का गवाह नहीं था। ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसके ऊपर हमने फ़ौरन काम शुरू किया। अच्छा, ये बताएं कि जब आप वहाँ डेड बॉडी पर पहुँचे, आप बताया कि उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। डेड बॉडी को तहवील में लेने के बाद फिर फर्दर तफ्तीश किस तरह से आगे आपने बढ़ाई और किस तरह असल कातिल तक पहुँचे आप लोग? इसमें काफ़ी लोगों को 5-6 लोगों को हमने शामिल तफ्तीश किया जो हमारे मशकूक थे, जिन पे हमें शक शुबा था इस कत्ल का। जब तफ्तीश हमने अपनी मुकम्मल की या इसको ट्रेस किया तो पता चला कि ये जो मकतूल है उसका करीबी दोस्त, बल्कि बेस्ट फ्रेंड कह लें, वही इसका कातिल था। इसको ट्रेस हमने इस तरह किया। बड़ी जुर्म की दुनिया में ये एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जो जुर्म है वो अपना निशान छोड़ता है या मुजरम अपना निशान छोड़ता है। इस केस में भी मुजरम ने अपना निशान छोड़ा। इसमें जो कातिल है उसको रंज ये था या वजह ये थी कि उसको शक था कि ये मेरा जो उसका करीबी दोस्त वकार था वो मेरी जो इसकी कातिल की मशूक थी या गर्लफ्रेंड की थी कि उसके साथ इसको शक था कि नजायज़ तल्लुकात हैं इसके साथ। यानी कि एक दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर अपने दोस्त को मार दिया? जी बिल्कुल, इसने अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर अपने करीबी दोस्त को मार दिया। इसने अकेले ये कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इसने उसकी डेड बॉडी को फसल मकई के अंदर फेंक दिया और इसने उसके मोबाइल से अपने मोबाइल पे मैसेज किया रात को कोई 2-3 बजे के करीब, जिसमें इसने लिखा कि मैं इसकी अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम लिखा कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ इस कत्ल का रुख मोड़ने के लिए, ताकि मालूम ये हो कि ये बंदा अपनी मशूक के घर गया और उसके घर वालों ने इसको कत्ल कर दिया। और उसने कातिल ने इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़रबात लगाई और अता कि इसके पे भी कट के निशान लगाए काफ़ी ज़्यादा, ताकि ये मालूम हो कि एक तो ये गया अपनी माशूक के घर है और दूसरा ये जो जिस तरह से उसने कत्ल किया ये उसने रुख मोड़ा कत्ल का कि मेरी तरफ मामला है। जी गैरत का मामला लगे और मेरे ऊपर किसी को शक न जाए, यही लगे कि दूसरी जो उसकी मशूक है उसके घर वालों ने इसको कत्ल किया है। तो जब हमने इन दोनों की कातिल और मकतूल की जो चैट थी व्हाट्सएप के ऊपर और मैसेज के ऊपर जो चैट होती है उसका हमने बगौर जायज़ा लिया तो हमें ये महसूस हुआ कि जो आखिरी 3 मैसेज इसने उसकी तरफ से शो किए ये इसकी राइटिंग में ही थे, यानी कि इनकी इसके अंदाज में थे। उसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जिनके स्पेलिंग मिलते थे इसके साथ कातिल के साथ, जिस तरह ये उन लफ्ज़ों को लिखता था। तो इससे हमें शक गहरा हुआ कि मतलब यही बंदा है, ये तो इसकी वर्डिंग है। तो इसको हमने शामिल तफ्तीश किया तो इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस 24 साल नौजवान के मकतूल नौजवान के भाई, जिसको उसी के दोस्त ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बात करते हैं इनसे। भाई, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है आपके साथ जो जुल्म हुआ है। ये दसो कि की झगड़ा की सी इन्हां दोवां दा आपस विच, किस वजह नाल और की इल्ज़ाम ला के उन्हें मारता? सर ਇਹੋ जी कोई चीज़ उनदे च नज़र नहीं आ रही सी, लेकिन मारन तो बाद कहंदा जी मेरी घरेलू कोई मसला सी, मैनू मार दिता। बस इन्नी गल कीती सर। पहले कुछ दिन नहीं मन्निया, बाद दे विच मन गया सर। अच्छा, ये किन्ने अरसे तो दोस्ती सी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਤਲ ਦੋਸਤੀ? ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਸਰ। 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਰ। 2.5 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਗੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਜਿਹਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਸਰ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਢੇਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਲੂ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਰ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਤਲ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਈ ਸਾਂ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਬਰ ਚ ਆਇਆ ਦੂਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਪਕੜੀ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਤਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮੇ ਸ਼ਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ अच्छा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰ ਸਰ अब देखें नाजरीन कि उस शख्स के ड्रामे चेक करें कि खुद ही कत्ल करके बड़ी बेरहमी से और फिर मकतूल के घर वालों के सामने ये कहता रहा है वो कहता गिरता रहा है ज़मीन पे और रोता रहा है तड़पता रहा है और इनकी वालदा को और मकतूल की जो वालदा उनको कहता रहा जी कि मैं आपका बेटा हूँ मैं आपके बेटे का कत्ल का बदला लूँगा और असल कातिल कौन था यही शख्स यही दोस्त जिसने बड़ी बेरहमी से अपने दोस्त को कत्ल कर दिया ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ जी सर यही बर वक्त कार्रवाई है पुलिस की ओकाड़ा पुलिस की डीपीओ साहब के कहने पर रनाना खुर्द के जो एसएचओ हैं और उनकी टीम ने इस कातिल को पकड़ लिया गरीब लोग हैं ये बेचारे लेकिन है कि सबसे बड़ी बात ये है ये आईजी साहब का भी विज़न है और सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा की भी यही उनकी ख्वाहिश भी होती है और उनका विज़न है कि मज़लूम को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए और जहाँ पर ये इंसाफ होता है डेफिनेटली अच्छा काम होता है हम वो भी दिखाते हैं और जहाँ पर नहीं अच्छा काम होता जहाँ पर पुलिस अच्छी कारकर्दगी नहीं भी कर रही होती हम उस चीज़ की भी निशानदेही करते हैं ताकि आला अफसरान उस चीज़ को बेहतर कर सकें बहरहाल यहाँ पर जो मामलात हैं उसमें ये देखने में आया कि गरीब का कत्ल हुआ गरीब बुज़ुर्ग माँ थी गरीब ये भाई हैं लेकिन कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके असल कातिल को पकड़ लिया बीच के दौरान क्या बताया जी कि इसको कब शक हुआ कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है या जिस लड़की को वो पसंद करता है उसके साथ इसके दोस्त के भी कोई मामला चल रहे हैं ये बताता है कि मुझे कोई 1 महीना पहले ये शक हुआ कि ये मेरा दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कॉल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते में भी है तो उसके बाद इसने ये अपने दिल के अंदर ये जो वो रंज बना लिया कि मैंने इसको मारना है मैंने इसका बदला लेना है क्योंकि इसने मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ ये नजायज़ तल्लुकात बनाए। अच्छा जी तो आला कत्ल से इसको कत्ल किया है वो क्या था और किस तरह से इसने कितने वार किए कहाँ पर ले जाकर मारा कैसे कत्ल किया उसको घर से कैसे लिया या किस तरह उसको अपने ट्रैप में लेके आया ये कातल के डेरे पे ही बैठे हुए थे दोनों दोस्त तो इन्होंने कातल ने कहा मकतूल से कि चलो साथ ही गाँव एक 12 माइल वहाँ से बर्गर खाने चलते हैं बर्गर खिलाने के बहाने ये उसको गांव से लेकर निकला जब ये रास्ते में पहुँचे तो इसने उसे किसी बहाने से रोका कि यहाँ पे रुको जब ये रुका तो इसके पास ऑलरेडी खंजर था जो उसने पहला वार किया इसकी शाहरग के ऊपर खंजर मारा जिससे वो गिर गया क्योंकि वो थोड़ा सा कमज़ोर था ये ताकतवर था उसके बाद इसने पैदर पे काफ़ी ज़्यादा वार किए उसके सर के ऊपर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे जिससे उसकी मौके पे डेथ हो गई। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है कातिल और मकतूल दोनों के दोस्त यानी कि जो कातिल है अपने दोस्त का
और जो मकतूल था बेचारे आपस में दोस्त थे, और ये उनके मुश्तरका दोस्तों से हम बात करते हैं कि इतना बड़ा सान्या हो गया इनके गांव में और एक दोस्त ने दोस्त की जान ले ली, तो क्या मामला थे। ये बताइए कि आप कातिल और मकतूल दोनों के दोस्त हैं, तो क्या कितना अरसे से दोस्ती थी इनकी, फिर दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? ये काफ़ी देर से दोस्ती 10-12 साल हो गए हैं, इकट्ठे दोस्त हैं हम, इकट्ठे ही रहते थे। कोई ऐसा मसला नहीं था, कोई भी वजह नहीं थी, कोई पता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मामलात बने, किस तरह हुआ या किस तरह नहीं हुआ, किस चीज़ का पता नहीं चला, इसने ये कत्ल कर दिया। आफ्ताब ने हाँ जी, वकार को कत्ल कर दिया। हाँ जी, वकार को कत्ल अच्छा, कर दिया। ये कत्ल से पहले कोई इस तरह का अंदाजा, कत्ल के बाद भी आपको अंदाजा नहीं था कि आफ्ताब मार सकता है उसको? नहीं जी, कत्ल के बाद भी हमको कोई अंदाज़ा नहीं था भी ये आफ्ताब इसको मार सकता है, क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती थी, हर टाइम इकट्ठे रहना, इकट्ठे खाना पीना, हर चीज़ इकट्ठा ही था। कोई ऐसा मसला नहीं था, इसके पास आफ्ताब के पास जाके सोता था, बैठता था, यानी कि कोई वजह ना, कोई पहले इनकी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। अचानक हो गया ये कोई मसला, समझ नहीं आया ये क्यों इसने ऐसा किया, बहुत बेरहमी से उसको मारा, मसला कोई पता नहीं चला ये क्यों ऐसा। आप बताइएगा, ये जो जब कत्ल कर चुका था उसके बाद फिर ये कैसे? मेरी इससे मुलाकात हुई है कत्ल के बाद। अच्छा, जिस दिन जनाजा था, डेड बॉडी गई है ना इधर से, पोस्टमार्टम के बाद तो मेरी मुलाकात हुई है। तो ये भी मेरा दोस्त है, वकार भी दोस्त था, और हमारा काफ़ी अरसे से ताल्लुक़ है, ये नहीं कि कोई साल 2 साल की दोस्ती है, 10-12 साल से हम दोस्त हैं। और ये आफ्ताब भी, और मुझे इसने खुद कहा है कि यार असद अच्छा नहीं हुआ वकार के साथ, जिस बंदे ने भी किया है हमने उसके टोटे टोटे करने हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं कहा यार तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो ये बड़ा सान्या था, क्योंकि वकार मेरा तो बहुत ही कुलीग था, हमने इकट्ठे एक साथ बिजनेस भी किया हुआ है, और वैसे भी लाहौर भी एक साथ कोई 5-7 साल हम लाहौर भी रहे हैं। तो उसकी डेड बॉडी उसको बड़ी अजियत दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ना आप बिलीव करें कि ऐसे कोई दरिंदा भी नहीं ऐसे करता जैसे उसके साथ सलूक हुआ है। अच्छा, इस तरह मारा? बंदे की रूह कांप जाती है। आप तस्वीरें शायद आपने देखी होंगी। हाँ बिल्कुल, बड़ी खतरनाक तस्वीर। उसको इतनी इज्जत दी गई है ना कि आप सोच नहीं सकते, तड़प तड़प के मरा है वो। मैं बता नहीं सकता आपको। आपकी आवाज़ की जो लर्जिश है ना, वो बता रही है कि लेकिन आपको उसके साथ जो है ना बहुत जुल्म हुआ है और ज्यादती हुई है वकार के साथ। होना नहीं चाहिए था। वो हमारे गाँव में ना, हमारे सारे जितने भी हम फ्रेंड हैं ना, वो हमारी जान बना हुआ था। ये भी आफ्ताब भी हमारी जान ही था। आपस में बैठना, रात को 12-12 बजे तक हमारी बैठक थी, 10-11-12 बजे तक अक्सर हम बैठ जाते थे, गपशप हो रही, ताश खेल रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, लूडो खेल। तो अचानक जब ये हुआ है, मुझे पता, मैं अपनी शॉप पे था, तो मुझे पता चला यार वकार का कत्ल हो गया, इस मक्की में उसकी लाश पड़ी हुई है। मैं उससे इसी मैंने आफ्ताब को ही फ़ोन किया, फर्स्ट कॉल मैंने आफ्ताब को ही किया, यार हाँ आफ्ताब क्या हुआ है। मैं क्या, जाहिर सी बात है वकार जो है जो 24 घंटे बैठक इसके साथ है, तो जाहिर सी बात है मुझे तो यही कि यार आफ्ताब से मुझे सारा क्लियर पता चल जाएगा कि किस बंदे ने किया है या कैसे हुआ है। मैंने इसको फ़ोन किया है, हाँ आफ्ताब यार मुझे कल्ले का पता चला है, उसका नाम कल प्यार से हम कल्ला कहते हैं उसे, वकार को। तो यार हाँ यार मुझे भी पता चल रहा है, सद मैं बताता हूँ तुझे भी। मैं थोड़ा, मैंने कहा यार सदमे में होगा, जैसे हम सदमे में वो भी सदमे में होगा। लेकिन ये 3-4 दिन बाद में पता चला है कि जो जी आफ्ताब ने उसको ये कर दिया उसके साथ। आफ्ताब ने, यानी कि दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। एक दोस्त कातिल है और एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जाहिर है उसको दर्द महसूस कर रहा है, और उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज़ में लर्जिश है, और वो यकीन ही नहीं कर रही है दोस्त कि ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह के मामला जिस सारे सामने आ रहे हैं। उस लड़के ने जो इंकशाफात के दौरान ये ज़रूर बात बताई है कि उसकी जो जिसको पसंद करता था लड़की, क्या उससे वो शादी करना चाहता था या वैसे दोस्ती थी उसकी, और फिर क्या मामलात, इसको कब शक हुआ कि ये मामलात ऐसे चल रहे हैं? ये शादी वाली बात तो नहीं है, बस वैसे ही उसको पसंद करता था, प्यार करता था उससे, और कोई 1 महीना पहले इसको शक हुआ था कि इसके भी नजायज़ ताल्लुकात हैं मकतूल के भी जी। अच्छा, उस लड़की को शामिल तफ्तीश किया आप लोगों ने, उससे पता किया कि क्या उसने कहीं उसके कहने पे या कोई इस तरह का मामला तो नहीं है कि उसने कैसा कोई कदम उठाया हो? नहीं, इसकी अपने ही इसने दिल में वो अना बनाई और इसने खुद ही कत्ल किया। इसमें उस लड़की का कोई किरदार नहीं था, उसको हमने शामिल तफ्तीश किया। और अभी एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी कड़ी से? जी, इसमें बिल्कुल आला कत्ल उससे बरामद हो चुका है। इसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर इसको तफ्तीश को फाइनल करते हुए इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। लाश को ठिकाने कैसे लगाया इसने? कत्ल कहाँ पे किया और फेंका कहाँ पे इसने? जो 13 मानल गांव से 12 मानल जहाँ पे ये जा रहे थे, रास्ते में ही इसने उसको सड़क के किनारे रोक के कत्ल किया, और करीबी मकई के खेत में इसने खुद ही खींच के लाश को वहाँ पे फेंक दिया।
ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਦਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, होश ही नहीं आती भी जिंदा पुत्र एडा मरिया पे। अल्लाह सब्र दे जी। बिल्कुल जी, जिस माँ का जवान साला बेटा उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए। बाप मर गया ते निक्के निक्के बड़े औखे सांबे ने दिहाड़ियां मेहनत कर। बता रही हैं कि बच्चे छोटे छोटे थे, अकेले इन्होंने उनकी परवरिश की है, बड़े प्यार से बच्चों को बड़े मान से पाला था, लेकिन इस जालिम शख्स ने बड़ी बेरहमी से इतना बड़ा जुल्म किया। वो दोस्त बनकर उस शख्स ने दुश्मनों से बदतर काम किया। बहरहाल जी मिनट मिनट फोन करदा आ जा, हाँ भाईया मैं आंदा पे मेरे मुंडे, हाँ भाईया मैं हुणे आया, भाईया मैं रोटी खा लवां, भाईया मैं नहा लवां। बस इस तरह करके पाई बन के सक्का ते बेतरसी नाल मारिया। कोई जुल्म नहीं, कोई कुछ नहीं, बेदोसा मार दिया। वो कहते हैं भाई बनकर उस शख्स ने, कातिल जो है उस कातिल और जालिम दोस्त ने भाई बनकर पहले एतमाद जीता और फिर उसको मार डाला। बहरहाल यहाँ पर DPO ओकाड़ा के अहकामात पर जो स्पेशली थाना सदर रनाला खुर्द की जो पुलिस है, यहाँ की जो SHO है और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की और असल कातिल तक पहुँचे। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था, इसका सुराग लगाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन है कि पुलिस ने एक बर वक्त कार्रवाई की और असल कातिल तक पहुंच के इस मज़लूम माँ को, उस मज़लूम शख्स को इंसाफ दिलाया है। और हम यही कहेंगे कि बुरी सोबत से, बुरे मामलात से, बुरे लोगों से बचिए, इसका अंजाम बड़ा भयानक है। तो जब ये लाश आई उसके तो उस वक़्त क्या तासुरात थे इसके, किस तरीके से ये रोता रहा? हमारे साथ ही फिरता रहा। रोना तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी थी कि ये फिर रहा है। मैं इसके साथ फ्रैंक था। हाँ यार आफ्ताब ड्रामे कर रहा था थोड़े से। अब जाहिर सी बात है, एक बंदे ने अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। बस वो तो उसने जो भी जो भी एक्टिविटी उसने करनी थी कर रहा था। हम कब्रिस्तान गए हैं, दफनाया उसको, एक साथ खड़े रहे हैं। कंधा दिया उसने? हाँ कंधा भी दिया है। कंधा दिया है उसको, फूल डाले हैं कब्र के ऊपर और उसके फातिहा पे आया है, सारा कुछ किया इसने। अब देखिए जी, कुलखानी पे आया, कुलखानी पे आके फ्रूट वगैरह लेकर आया, सब कुछ लेके आया। खुद ही दोस्त को कत्ल करके खुद ही उसकी लाश को कंधा भी दे रहा है, दफना भी रहा है और अफसरदगी का भी इजहार कर रहा है। आप क्या कहेंगे जी, इतना बड़ा साने हो गया आपके गांव में, दोस्त ने दोस्त को मार डाला? जी सर, उसने दोस्त ने मार दिया, उसको बहुत बेरहमी से मारा है। इतनी दर्द हुआ है कि हम देख नहीं सके उसको। मैं रक्षा लेके आया हूँ अपना। अच्छा। मेरे रक्षे पे जब उसकी लाश रखी हुई थी, लाश इधर थाने में लेने के लिए आया हूँ मैं, तो मुझे खुद अपना रक्षा जो है ना वो चलाया नहीं जा रहा था, इतनी यानी कि बेदर्दी से उसको मारा है। जी सर। जी वो मेरा बहुत ज़्यादा दोस्त था, हम बचपन के दोस्त थे, पर इफ्ताब के साथ हमारी बस थोड़ी दोस्ती थी। उसने बहुत बेरहमी से हमारे दोस्त को मारा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इन दोस्तों का भी यही कहना है और डेफिनेटली यही चीज़ सामने आ रही है कि एक दोस्त ने दोस्त को जिस बेरहमी से कत्ल किया है उस चीज़ का जो उसको खुमियाजा है वो भुगतना चाहिए। और इसी हवाले से ओकाड़ा पुलिस की ख़ास तौर पर DPO ओकाड़ा और उनकी टीम, रनाला खुर्द थाना की जो पुलिस है SHO और उनकी टीम, उन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया कि दोस्तों को ही यकीन नहीं हो रहा कि क्या वो कातिल हो सकता है। तो पुलिस ने बर वक्त पहुँच कर असल कातिल को पकड़ लिया और उसको गिरफ़्तार कर लिया और उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह उसको कानून के मुताबिक सज़ा भी मिलेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसे दोस्तों से, ऐसे मुनाफिक लोगों से, मुनाफिक रिश्तेदारों से, मुनाफिक दोस्तों से और शरपसंद लोगों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।